Good morning, everyone. Till now, we have done exercise 2.4. Only two parts of the last questions were left. So today we are going to start with those two parts, right? We have to factorize a cubic polynomial now. For quadratic polynomial, we split the middle term, right? And for cubic polynomial, we did yesterday that when we have a cubic polynomial, we had taken common from first two terms, then common from next two terms, and then what happened? The both brackets were same, and then we had taken both the brackets common, right? Let me try the same in this question also. What is common between the two? Here we have common x square. What is left? X minus 3. Minus sign common, nothing is common, that means 1 is there. So 9x, because minus is common, so this sign will be changed, plus 5. Now, are these two brackets same? No. If they two are not same, that means we cannot go with this method. We will have to change the method. And what the method we are going to apply here is, first of all, hidden trial method, hit and trial method, और ट्रायल एंड एरर मेथड, राइट? तो यहाँ पर आप ट्राई करेंगे और एरर फाइंड आउट करेंगे कि आपने जो ट्राई किया क्या उसमें कोई एरर है और दैट इज करेक्ट, राइट? सो वी आर गोइंग टू ट्राई एनी वैल्यू ऑफ एक्स हियर, राइट? सो लेट मी ट्राई एक्स इज इक्वल टू 1. अपनी मर्जी से आप कुछ भी चूज करेंगे. आपको पता है जीरो तो इसमें आएगा नहीं, बिकॉज इफ यू टेक जीरो सो एक्स वाली टर्म्स सारी जीरो हो जाएंगी, बट ये जीरो नहीं होगा, राइट? यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और फैक्टर होने के लिए योर रिमाइंडर मस्ट बी जीरो. रिमाइंडर कब जीरो होगा? इफ यू पुट दैट वैल्यू ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल, आंसर इज कमिंग आउट टू बी जीरो, राइट? सो इस केस में जहां पर भी आपका लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, वहां पे आपकी एक्स की जीरो वैल्यू तो आ नहीं सकती. I am trying with 1. आप 1 करोगे, -1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, -2 कर सकते हो, राइट? कब तक करते रहेंगे? जब तक हमें 0 नहीं मिल जाती. Now I am taking 1. Put x is equal to 1. What I will get? 1 cube minus 3 multiply 1 square minus 9 multiply 1 minus 5. And now 1 cube is 1 minus 3 minus 9 minus 5, right? क्या ये आपका 0 आया? What the answer is coming? 12, 12 plus 5, 17, minus 17 plus 1, it will be minus 16, right? Minus 16 है तो ये 0 तो आया नहीं. That means x is equal to 1 is not the root of this polynomial, right? So we will have to try another root. Let me put x is equal to -1. ठीक है, देखो यहाँ पे सारे आंसर्स आपके ये सारे नेगेटिव आ रहे हैं, राइट? तो आपको इनके साइन चेंज चाहिए जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव हो जाए और आपकी टर्म्स कैंसिल हो जाए. और साइन चेंज कैसे होंगे? इफ यू टेक एक्स टू बी डिफरेंट साइन, टू बी ऑफ डिफरेंट साइन. सो आई हैव चूजन एक्स -1. नाउ x is equal to -1, if you put, you will get -1 cube minus 3 into -1 square minus 9 multiply -1 minus 5, right? Only at the place of x I have put -1, right? Now -1 cube will be -1 minus 3, and this -1 square will be +1, so no need to write. Minus 9 into -1 will be +9 minus 5. Now again we are checking whether the answer is coming out to be 0 or not. -1 minus 3 is -4, -4 plus 9 is 5, and 5 minus 5 is 0, right? जैसे ही आपका 0 आया, that means you can say x is equal to -1, or that implies -1 is the क्या? Factor. Not factor. Not factor. Not factor. First factor. No. और बोलो. 0. X plus 1 is first factor. Yes. This is the 0, or we can say root or solution. If -1 is the 0, that means x plus 1 will be the
factor. जीरो एक्स वेरिएबल में एक्स बटा हुआ ना, जीरो बटा हुआ तो एक्स काटे। Right? Beta, if you take -1 as the root, in that case x is equal to -1 आपने root लिया है, तो factor आपका क्या हो जाएगा? You will shift this 1 on this side, you will get x plus 1 is the factor. This is the root, this is the factor. Right? If I say x is equal to 2 is the root or the 0, then what will be the factor? X minus 1. X Minus 1. Minus 2. x minus 2. Minus In 2. that case, this will be the factor. X is equal to 2 is the 0 part of 2. Right? This was just for explanation. And now we have got one factor of the given polynomial. And how many factors must be there? How many? 3. 3. 3. factors. 3 factors. But we have got only 1. Right? अब इसके बाद आपको 2 factors और चाहिए. Then what we are doing? We are dividing this polynomial with the given factor. Right? अब आपने properly divide करना है because we have no need of the remainder. We know that the remainder in this case will be 0. We now find out the quotient. Right? Why? If I say I have the number 30, ठीक है, मुझे 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. आप क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं किससे? 2 से. आपके पास आ गया 15. ठीक है, 2 से आपने डिवाइड कर दिया, आपको ये पता चल गया कि 30 का एक फैक्टर 2 है. ठीक है, उसके बाद 2 की टेबल में 30 आ रहा है 15 पे. फिर आप क्या करते हैं? इस क्वोशिएंट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि आपको अगले फैक्टर्स पता लग जाएं. फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से एंड वी गेट 5. हमने 15 को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, मतलब हमने क्वोशिएंट को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया. नाउ अगेन यहां से हमने पहले फैक्टर से डिवाइड किया, जो क्वोशिएंट आया उसको हमने फिर से ब्रेक कर दिया. राइट? सिमिलर इज हियर. ये पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर आ गया. इस क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन वाला समझ नहीं आया. 30 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्या आता है? आपने एग्जांपल दिया है. yes, I have taken the example. 30 you are taking, आपको पता है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 15 पे डिवाइड हो रहा है. राइट? बट आपको स्टिल 30 के फैक्टर्स चाहिए, तो आप 2 × 15 लिखते हैं. बट 15 भी आपको पता है कि 15 आप लिख सकते हैं 3 × 5. ठीक है, एक फैक्टर से डिवाइड करते हैं, जो क्वोशिएंट आता है उसको फिर से ब्रेक कर देते हैं. राइट? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. हम फाइंड आउट करेंगे क्वोशिएंट. रिमाइंडर तो हमें पता है कि 0 आएगा बिकॉज दिस इज द फैक्टर. इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड कीजिए. प्रॉपर डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन. राइट? We will take dividend as x³ - 3x² - 9x - 5. राइट? डिवाइड करने के लिए आप इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से कंपेयर करोगे कि ये टर्म्स आपस में इक्वल हो जाए. इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये x³ बन जाए? x². So I will have to take here x². अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिखना है. बट while writing the answer here, you have to take care that you are writing the like terms under the like terms. क्यूब वाली के नीचे क्यूब वाली टर्म आनी चाहिए, स्क्वायर वाली के नीचे स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए. x² multiply x will be x³ and x² multiply 1 will be x² plus or minus प्लस. ठीक है, साइन भी आपने यहीं से लेना है. ये पॉजिटिव, सो द आंसर विल बी पॉजिटिव. आप क्या करोगे? उसके बाद आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हो. नेक्स्ट टर्म. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए जब हम अलजेब्रा में सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी हैव टू चेंज देयर साइंस. राइट? Yes, ma'am. क्यूब से आपका x³ कैंसिल. -3x² minus 4x. it will be minus -4x. 4x². 4x².
Remaining minus 9x minus 5. yes, remaining terms we have taken as it is. इनके साइन चेंज नहीं करने हैं. जिसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लेकर आए हो उसके आपने साइन चेंज करने हैं. राइट नाउ अगेन आई वांट टू मेक x माइनस 4x स्क्वायर. x को माइनस 4x स्क्वायर बनाने के लिए आई विल हैव टू मल्टीप्लाई x विद minus 4x. यस minus 4x Minus इसको 4x. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको माइनस 4x से. माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया. माइनस प्लस माइनस 4x Minus into x it will be 4x square. 4x. वेरिएबल्स की पावर्स ऐड होती जाएंगी. माइनस Yes, ma'am. माइनस ठीक है प्लस माइनस माइनस 4x मल्टीप्लाई 1 विल बी 4x. तो x वाली टर्म के नीचे x स्क्वायर. Here you are going to write minus 4x. Again we Yeah, are going okay, to ma'am. subtract. Subtract means first of all we will have to change the signs. Minus 4x square plus 4x square cancelled. They will always get cancelled because we are making them to be equal and we are changing their signs also. So first term आपकी हमेशा cancel होती जाएगी. Now minus 9x plus 4x will be minus 5x and this minus 5. Now again let we make the first term to be equal. Right? minus 5. Very good. मैम 5 से कर दो. हाँ जी 5 से minus 5 5. minus 5. minus 5. Minus 5 से होएगा. Minus is also 5 there. से कैसे होएगा? माइनस 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 5 मल्टीप्लाई x विल बी माइनस 5x. माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस माइनस minus 5 multiply 1 will be minus 5. Right? Again change the signs. This cancelled and this is also cancelled and the remainder is coming out to be 0. वो तो 0 ही आना था because we know that this is the Yes, ma'am. right. तो रिमाइंडर तो 0 ही आना था. अब उसके बाद हमने कहा था कि जो क्वोशिएंट आएगा we will again break it into further factors. What is the quotient here? मैम ये एक बार भी समझा दो. x square minus 4x minus 5. Yes. दोबारा से समझाते हो ईशान. x minus 4x minus 5. राइट. अब मुझे इसको ब्रेक करना है. मैं डिवीजन आपको दूसरे एग्जांपल से दोबारा बता दूंगी. अभी आप इसमें सिर्फ मेथड देखो. Those who are doing through this, they can watch it later to do the solution if any problem you feel. Otherwise, you have to try to do the questions yourself, right? मैम पीछे से थोड़ी आवाज आ रही है, आपकी क्लियर नहीं आ रही. मेरी क्लियर नहीं आ रही. मैम पीछे से आ रही है आवाज. मैम आ रही है क्लियर. हम सही आ रही है. ओके 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 चलिए. मैम हाँ जी. जरूरी ये है जो पार्ट है मैम ये मेरी बुक में लिखा है -2x स्क्वायर. मैम वो भी सही है ना? कौन सा कहाँ पर? मैम मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा है -2x स्क्वायर फर्स्ट पार्ट. मैम ये सेकंड है. बेटा this is the second part. First part we did yesterday. ओके मैम. चलिए इतना क्लियर हुआ है. आपके डिवीजन करनी जरूरी है. बिल्कुल जरूरी है. जहां पर हमारा वो मेथड नहीं एप्लीकेबल है वहां पर हम डिवीजन से करेंगे. Have you done it by any other method? मैम इसी मेथड से किया फिर तो डिवीजन करनी पड़ेगी. Yes. मैम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में मैच कर सकते हैं. बिल्कुल 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 कर सकते हो. अभी क्वेश्चन आपका पेंडिंग है. लेट मी फिनिश द क्वेश्चन. आपके पास अभी तक सिर्फ एक ही फैक्टर आया है x plus 1. Still you are working for other two factors. For that we have taken the quotient and now we are finding out the other two factors. 3 terms हैं, quadratic equation है. Which method I will have to go with? मिडिल टर्म. Middle term split method. बताइए बताओ. Split the middle term. First term as it is, last term as it is. Middle term के 2 parts बताओ क्या क्या आएंगे. -5x plus x. minus 5x plus x. Minus 5x. minus 5x plus x. Yes, we multiply the first and the last term. यहाँ पर first term आपके coefficient 1 है. Here we have 5. So 1 multiply 5 is 5. 5 को आपके क्या क्या आप इसको लिख सकते हो. You can only write it as 5 multiply 1. और इन दोनों का आपका difference भी क्या है? 4 है. Right? Their difference is
मिडल टर्म, तो इनमें से बड़े नंबर के आगे मिडल टर्म का साइन लगता है, जो छोटा नंबर होता है उसके आगे ऑपोजिट साइन लगता है। नाउ वी हैव डिवाइडेड द मिडल टर्म एज 5x एंड x, दोनों में से बड़ा है 5, तो 5 इसका साइन ले लेगा और इसको दूसरा साइन लेना पड़ेगा, राइट। दिस हैपेंस ओनली व्हेन यू आर गेटिंग द मिडल टर्म बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू नंबर्स, राइट। अगर एडिशन से आता है तो दोनों को सेम साइन मिल जाता है। Okay, now we have to take common from these two terms. Common is x and what is left? यहाँ से आपका रह गया x, यहाँ से रह गया 5. -5 plus Minus 1 five. Plus x minus 1, nothing is common means 1 is x common. minus X minus 5. Now the two brackets are same, right? चलो इससे पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे terms कितनी है? At present how many terms are visible? 2 2. What is common? Common is x minus. x minus 5. So we are taking x minus 5 common. What is left? X plus 1. Plus 1. ठीक है, आपके पास दो फैक्टर्स आ गए. So in your answer you are going to write the answer to be, क्या लिखूं? x plus 1, x plus 1, x minus 5. Yes, x plus 1, x minus 5, दो तो ये और एक आपने पहले लिया था x plus 1. Both are x plus 1. मैम दो सेम हो गए। हाँ कोई बात नहीं, 1 x plus 1। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके मैम दो तो वो फैक्टर्स तो दो ही हुए ना? बेटा नहीं, हाँ कह सकते हो फैक्टर्स अगर आपसे पूछते हैं, बट स्टिल आपको फैक्टराइज करने को बोला है। फैक्टराइज मींस यू हैव टू राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, राइट। आपसे ये नहीं पूछा कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। अगर ये पूछते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं तो आप लिख सकते हो x plus 1 is the factor and x minus 5 is the factor. But when they are saying फैक्टराइज करने को अगर बोलते हैं, मैं वही फिर से एग्जांपल ले रही हूँ, 16 को फैक्टराइज करो, देन इसमें सारे आपके 2 आते हैं, ठीक है, सारे ही फैक्टर्स 2 हैं। बट फैक्टराइज करना है मींस वी हैव टू राइट 16 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। क्लियर? मैम यस, इसको बता दो। डिवीजन अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उसमें डिवीजन दोबारा से हो जाएगी, नहीं होगा तो फिर से और कोई एग्जांपल ले लेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम 3 फैक्टर्स लिखने जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल जरूरी है, फैक्टराइज करने को बोला है, Oh. राइट। दैट मींस यू हैव टू राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है। क्यूबिक है, आपको 3 फैक्टर्स इजीली मिल रहे हैं तो आप करोगे, राइट। आपके आगे क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे जहां पर आपकी क्यूबिक होते हुए भी आपको 3 फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस में हमें 2 ही फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। क्लियर? इरेज any problem, any doubt? Only division is the problem that we are doing in the next question, right? Yes. सबसे पहले आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ। What we did? What was the first? ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने पहले 0 निकाली, उसके बाद उस 0 से हमारे पास क्या आ गया, उसका क्या आ गया? 0 of the polynomial -1। 0 से हमने फैक्टर किया और फैक्टर आने के बाद आपने क्या किया, उससे लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन से हमने क्वोशिएंट फाइंड आउट किया, क्वोशिएंट आने के बाद हमने क्या किया, क्वेश्चंस को स्प्लिट कर दिया, क्वोशिएंट को स्प्लिट कर दिया बाय मिडिल टर्म एंड देन वी गॉट द 3 फैक्टर्स, राइट। स्टेप्स यू हैव टू कीप इन माइंड। लेट वी नाउ फाइंड आउट द फर्स्ट 0 of the polynomial by trial and error method। अब देखो, अगर मैं इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करती हूँ तो सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी एंड द आंसर विल नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। आपको यहाँ से देख के क्लियर हो रहा होगा कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो सारी टर्म्स पहले से ही पॉजिटिव है, तो आपका आंसर 0 तो आने से रहा। सो वी विल हैव टू गो विद द नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव। So let me put first value of x as -2, -1 ले लेते हैं। Let me try with 1, smallest से चलते हैं। So -1 cube plus 13. You can try with -2 also. Whatsoever comes in your mind, you have to do. 32 multiply -1 plus 20, right?
Now -1 cube is -1 plus 13 multiply -1 square is +1. So 13 as it is, 13 ones are 13 plus minus minus 32 into 1 is 32 plus 20. ठीक है, जल्दी से चेक करो 0 आ रहा है या नहीं? मैम 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। ये इनका सम 33 माइनस 33 और ये प्लस 33 माइनस 33 is 0. That means -1 is not factor. not factor. तो क्या है? सही कहा, is not the factor. तो क्या है? -1 is the 0. X plus 1 factor. yes 0 of given polynomial. I have not written here, so I am not writing here given polynomial, right? अगर ये 0 है, that means x plus 1 minus 1 is 0. जरूरी नहीं है। क्या क्या कह रहे हो? जरूरी नहीं है क्या जरूरी नहीं है? मैम, जो px लिखते हैं उसके आगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, it's your choice. So this is the factor of given polynomial. हाँ, अब क्या? हाँ जी, x plus 1 कैसे आया? ये देखो, आपके पास x is equal to -1 0 आई है, x is equal to -1 is the 0. ठीक है, ये तो x की वैल्यू -1 कैसे आया? आपने पुट किया x is equal to -1, जहां जहां पर x था आपने -1 पुट कर दिया और उसको सॉल्व करने के बाद 0 आ गया. अगर ये 0 आ गया, दैट मीन्स -1 जो आपने वैल्यू पुट की थी, दैट इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. अगर ये 0 ना आता तो हम नहीं कह सकते थे कि ये इसकी 0 है, फिर हमें कुछ और वैल्यू ट्राई करनी पड़ती. क्लियर ईशान? यस. ओके, चलिए. नाउ इफ -1 x की वैल्यू -1 आपकी 0 आई है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर आप इसको इधर शिफ्ट करोगे, ये हो जाएगा x plus 1. दैट मीन्स x plus 1 आपका क्या बनेगा? फैक्टर बनेगा. ठीक है, नाउ अब फैक्टर, एक फैक्टर आ गया, फिर क्या करूं? क्या करें? Long Long division division method. डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं गिवन पॉलिनोमियल को. मैं इसको इरेज करके यहीं पर कर रही हूँ. x plus 1 से आई हैव टू डिवाइड इट, राइट? चलिए, सबसे पहले आपने x को x क्यूब बनाना है. X square. यू विल हैव टू X मल्टीप्लाई squared. x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो. x स्क्वायर मल्टीप्लाई x इज x क्यूब. x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज x स्क्वायर. तो आपने x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख दिया x स्क्वायर. ईशान, ध्यान से सुनना, जिसको डिवीजन में प्रॉब्लम थी, प्लीज बी केयरफुल, बी अटेंटिव. x क्यूब, अब आप माइनस करोगे मीन्स यू विल हैव टू चेंज द साइन. x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल, 0 आ गया. 13x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इट विल बी 12x. yes. then next term is मैम माइनस में नीचे वाला साइन चेंज नहीं हो जाता है? कर दिया साइन चेंज. आपने माइनस करना था, साइन चेंज कर दिया. उसके बाद ये प्लस को माइनस कर दिया, बट आप यहाँ से अब तो बड़े नंबर वाला साइन रखोगे ना. 13x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 12x स्क्वायर. बड़ा कौन सा है, 13 या 1? 13. तो आप बड़े नंबर का साइन मीन्स पॉजिटिव रखोगे. क्लियर? क्लियर? यस. ओके, अब x को 12x स्क्वायर बनाना है. x को x स्क्वायर बनाने के लिए x चाहिए, एंड यू नीड 12 also. 12x. plus 12x, right? Multiply करो, 12x into x is 12x square. 12x multiply 1 is plus 12x. 12x 12x. Now again subtract. Subtract means Subtract. change the signs. Now Change. 12x square minus 12x square cancel. 32x 20x plus 20. 20x plus 20x 20. plus 20 20x 10x. मैम 0 आ जाएगा. x को मैम, मैम अब 20 से करना है. मैम 20 से करना है. I will have to take care. 20 multiply x is 20x and 20 multiply 1 is 20. 20. So I am 20. writing it here. फिर से sign change.
cancel. Zero. Remainder is 0. What is the Zero. next step? Next step. Next step, Break the question. क्वेश्चन लेके उसको मैम क्वेश्चन लेके उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है. Yes. Split the middle term. First and last term product is 10 to the plus 20. 10x plus 2x. 2x. 10x plus 2x. yes. आपके पास 20 आया. 20 we can write as 10 multiply 2. We can write as 4 multiply 5. और क्या लिख सकते हो? 20 multiply 1 is 20, right? So आपके पास ये 3 pairs हैं. आपने 4 5 okay done. 4 5 लेना है. have to choose the one जिससे आपका आंसर 12 हो जाए, right? 10 plus 2 12. तो आप 10 plus 2 इसको ब्रेक कर दोगे. You will get x square plus 10x plus 2x plus 20. Take common from the first two terms. X. Common left is X. 10. X plus 10. Common 2. 2. What is left? X plus 10. 2 X plus plus 10. 10. 2. X plus 6. 10. X plus 10. Yes, x plus 10 is common. Other Plus bracket. X plus 2. Plus 2. X plus 2. Answer क्या X लिखूं? plus 1. Answer क्या लिखूं? X X plus plus 10. 10. X plus Plus X plus 1 2 x and X plus plus 1. 2 और x plus X plus 1. X Yes, ma'am. दो फैक्टर्स दिए और एक फैक्टर आपने ट्रायल एरर से निकाला था. अदर थर्ड फैक्टर इज दिस. सो वी हैव फैक्टराइज्ड the given polynomial, cubic polynomial. This is the way to find out the factors of the cubic polynomial. Now I yes. मैम वो 3 पेयर बन रहे थे, कोई भी ले सकते हैं. ईशान थोड़ा सा धीरे बोल के बोलो. मैम वो 3 पेयर थे, कोई भी ले सकते हैं. मतलब कोई भी ले सकते हैं. आपने तो तीनों आंसर लिखने हैं. 4 5 भी तो बन रहा था 20 का. अच्छा 20 का. ओके बेटा हमारा जो ये था ना डिवीजन तो होगी ना क्लियर. यस मैम. चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैं आपको आज एग्जांपल्स भेज रही हूँ आफ्टर द क्लास. यू हैव टू डू द क्वेश्चंस. माय क्वेश्चन वाज x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 और हमने कहा कि 20 को हम या तो 4 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं या 10 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं और वी कैन राइट इट एज 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1. वी हैव टू चूज दैट फैक्टर जो हमें 12 देगा या तो प्लस करने पर या माइनस करने पर. अगर मैं 4 5 लेती हूँ तो 4 5 को प्लस करके क्या आता है 9 और माइनस करके आता है 1. 9 भी नहीं चाहिए 1 भी नहीं चाहिए. दैट मीन्स ये वाला आपको फैक्टर नहीं लेना, राइट? ये वाला पेयर नहीं चूज करना. देन 20 एंड 1. 20 प्लस 1 इज 21. नहीं चाहिए. 12 चाहिए. 20 माइनस 1 इज 19. ये भी नहीं चाहिए. अगर दोनों ही नहीं चाहिए दैट मीन्स ये पेयर नहीं लेना, राइट? नाउ कम ऑन द थर्ड पेयर. 10 प्लस 2 12. 12 ही आपको चाहिए तो आपको यही पेयर लेना पड़ेगा. ठीक है. मैम इसमें 3 फैक्टर निकालने हैं. 3 ट्रायल एंड एरर वाले मेथड से निकाल सकते हैं. क्या दोबारा बोलो. हम इस क्वेश्चन में 3 फैक्टर निकालने हैं तो हाँ जी. 3 ट्रायल वाले से निकाल सकते हैं मेथड से. नो 3 आपके जरूरी नहीं है ना. आपके ट्रायल मेथड से आएंगे. देखो आपका जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 2 फैक्टर्स तो सेम आ रहे थे. 2 फैक्टर सेम थे ना उसमें. x plus 1 और x plus 1 था एंड आई थिंक द थर्ड वन वाज x plus 2. जो भी था आपके 2 फैक्टर्स तो सेम आ गए. अगर ट्रायल मेथड से आप फाइंड आउट करोगे तो आप x को एक ही बारी तो -1 पुट करोगे. आपको कैसे पता चलेगा कि वो 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है, राइट? तो ट्रायल एंड एरर से नहीं Yes, कर ma'am. राइट. और वो हो सकता है कोई बहुत बड़ा नंबर आ रहा हो. उस नंबर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा ट्रायल्स लगाने पड़ जाएंगे, राइट? तो आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा. डोंट बी अफ्रेड ऑफ डिविजन. यू विल बी एबल टू डू इट. डिविजन बहुत इजी है. प्रैक्टिस कर लेंगे यू विल ओवरकम थ्रू द प्रॉब्लम, राइट? चलिए आज सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करनी है आपने. आई एम गोइंग टू सेंड यू सम प्रॉब्लम्स फॉर दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स, राइट? मैम. हाँ जी हम जो आप कह रहे मैम. थे आइडेंटिटी कैंसिल हुई है वो कौन सी है?
क्या आप कह रहे थे एक आइडेंटिटी नहीं करनी है। हाँ, वो आपकी बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी ना, तब बताऊंगी। मैम वो तो लास्ट वाली है ना शायद। मैम हाँ जी, नेक्स्ट क्लास यूट्यूब पे लो ना। रीजन, व्हाट इज द रीजन? मैम जितनी बार ट्राई कर लो आवाज ही नहीं आती, कट कट के आती है, पीछे से कोई बोल रहा होता है, पता नहीं क्या क्या आती है। अच्छा, उसमें सारे चुप रहते हैं इसलिए। यस मैम। बट आई वाज थिंकिंग नहीं मैम इसीलिए ठीक है। मजा आता है। आई थॉट दैट यू ऑल आर आपको कुछ बोल तो सकते हैं। वेट, लेट मी स्पीक। बेटा यहाँ पर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, उसी टाइम बोल सकते हो, सारा कुछ उसी टाइम पे अगर आप टाइप करते हो तो एकदम से आप अपनी प्रॉब्लम मेरे तक नहीं पहुंचा सकते। जब तक आप लोग ओके मैम। टाइप करोगे, लिखोगे, तब तक तो क्वेश्चन आगे जा चुका होगा। दैट इज मैम चैट डिसेबल ना किया। ओके, चलिए, I will let me think. I asked from the students, they demanded Zoom, right? That is why I switched to this. But Vaibhav, you can see the class later if there is the problem, right? I upload it on YouTube and send the link to you. Then you can watch from there, right? Let me end the session here. Any problem? Yeah, Any ma'am. Yes. No, ma'am. Okay then. No, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye bye.